رات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ ایف پی ایریا، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن میں تیز بارش ہے۔ گلشن اقبال اور شارع پاکستان پر رمجھم ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف اشرف خان سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھا جائے محکمہ موسمیات نے جیسے کہ کہا تھا کہ کراچی شہر میں آج بارش ہو سکتی ہے، تو اب نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، جس میں فیڈرل بھی ایریا ہے، گلشن اقبال ہے، شارع پاکستان ہے، وہاں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی نورن آباد، ناظم آباد، نیو کراچی، شادمان، وہاں پہ بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جو کہ مختلف علاقوں سے جو فوٹیج ملی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے فیڈرل بھی ایریا میں تیز بارش شروع ہوئی تھی، جو 10 سے 15 منٹ تک جاری رہی ہے، اور اب ہلکی ہلکی بونداباندی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے بھی کہا تھا کہ جو چکنی طوفان ہے وہ تقریباً اس وقت دیکھا جائے کراچی سے 700 کلومیٹر دور ہے، اس نے رخ بدلا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان سے آ سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی کہا کہ کراچی میں اس کے ہلکی بارش کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اب کراچی کے مختلف علاقوں میں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں ہلکی اور تیز بارش مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے۔ کراچی کا موسم جو ہے مطلب اگر دیکھا جائے رات گئے بھی گرم ہوا تھا، لیکن برسات کے بعد اب موسم خوشگوار ہو گیا ہے، اور سڑکیں پہ جو ہے ہلکا ہلکا پانی جمع ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ مسلسل تیز بارش ہوئی ہے 10 سے 15 منٹ، اور اس کے بعد اب ہلکی بونداباندی ہو رہی ہے مختلف علاقوں سے جو آئی ہے، یعنی گلشن اقبال میں بھی دوبارہ سے بتاؤں کہ فیڈرل بھی ایریا بھی ہے، نورن آباد ہے، ناظم آباد ہے، نیو کراچی ہے، ان علاقوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جہاں پہ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اشرف خان یہ بتائیے گا کہ جو یہ بارش ہے، جو بوندا باندی ہو رہی ہے، کیا یہ موسم سرما کی دستک ہے؟ بالکل، محکمہ موسمیات نے بھی یہی کہا تھا کہ موسم سرما کی جو پہلی برسات ہے وہ ہوگی، لیکن یہاں پہ دیکھا جائے ساتھ ہی جو طوفان کی بھی جو اطلاعات تھی اس کے بھی اثرات دیکھے جا رہے ہیں کراچی میں، جو کہ محکمہ موسمیات گزشتہ 3 روز سے اپڈیٹ دے رہا تھا، جس میں خدشات بھی ظاہر کر رہے تیز بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو شکنی طوفان ہے اس نے اپنا رخ بھی بدلا ہے، اور جو پہلے کراچی سے 390 کلومیٹر تھا، پھر 480 ہوا، پھر 580 ہوا، اب تقریباً کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے اب 700 کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کے اثرات ہیں جو کہ کراچی میں مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اب کراچی کے مختلف علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ ہلکی اور تیز بارش مختلف علاقوں میں ہونا شروع ہو گئی ہے، جس میں یہ خاص طور سے دیکھا جائے سینٹرل کا علاقہ ہے، جہاں پہ خاص طور پہ سینٹرل ہے، وہاں پہ زیادہ اطلاعات موصول ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس اور حساس ادارے کی جمال شاہ اسٹریٹ کے قریب مشترکہ کارروائی، خالی پلاٹ سے مارٹر گولے اور موٹر فولڈر برآمد ہوئے۔ دھماکہ خیز مواد لیاری گینگ وار شفیق پٹھان گروپ کا ہے، مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ پولیس کے مطابق مشترکہ ٹارگیٹڈ کارروائی تھانہ نیپیر کی حدود جمال شاہ اسٹریٹ نزد کوثر پیٹرول پمپ کے عقب میں موجود خالی پلاٹ میں کی گئی۔ پولیس کو مخبر خاص سے اطلاع ملی تھی کہ اس خالی پلاٹ میں دھماکہ خیز مواد دفن ہے، جس پر حساس ادارے اور نیپیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے کھدائی کی۔ کھدائی کے دوران 5 مارٹر گولے اور 5 موٹر فولڈر برآمد ہوئے، جس کی اطلاع فوراً بم ڈسپوزل اسکواڈ کو دی گئی۔ مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دھماکہ خیز مواد لیاری گینگ وار شفیق پٹھان گروپ کا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ پاکستان رینجر سندھ کی ملی جام گوٹ اور بلال چورنگی کے قریب کارروائی، اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کا دوران ڈکیتی متعدد افراد کو زخمی کرنے کا انکشاف۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ کو بتائیں بلدیہ نمبر 8 پاور ہاؤس کے قریب کرنٹ لگنے سے جھلس کر 2 بچے زخمی ہو گئے۔ بچوں کی شناخت 14 سالہ حماد اور 10 سالہ حفیظ کے نام سے ہوئی۔ بلدیہ نمبر 8 پاور ہاؤس کے قریب کرنٹ لگنے سے جھلس کر 2 بچے زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی ہونے والے بچوں کی شناخت 14 سالہ حماد اور 10 سالہ حفیظ کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی ہونے والوں کے بچوں کو سول برنس وارڈ منتقل کیا جا رہا ہے۔ شیر شاہ سوری روڈ پر پانی کی بلک لائن لیک ہونے کے باعث ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے، وہیں ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے، حادثات بھی جنم لے رہے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ماڈل شارع کا خواب چکنا چور، محکمہ پانی و صفائی کی غفلت، لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ شیر شاہ سوری روڈ گزشتہ 2 روز سے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، جس نے ٹریفک جیم اور حادثات کے واقعات کو بڑھا دیا۔ لوگوں کو تو بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس سے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، موٹر سائیکل بند ہو رہے ہیں،
2 दिन से ये पानी चल रहा है यहाँ पे, कोई आया नहीं अभी तक देखने वाला यहाँ पे। नागन चौरंगी से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाने वाले ट्रैक पर हजारों गैलन पानी जाया हो रहा है। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक F का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद मुतासिर हो रहा है। परेशानी सब लोग का परेशानी हो रहा है, कटर का पानी, गंदा पानी है, सब लोग को कपड़े खराब हो रहे हैं, सब लोग को खराब एक्सीडेंट भी हो रहे हैं इस पानी की वजह से। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का अमला मुतादिद बार 9 तामीर शुदा सड़कों को लाइन लीकेजेस के लिए खोद चुका है, मगर लाइनों के रसाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डरने वाले नहीं, सिंध के सीनियर वजीर का दो टोक जवाब। शजरीना मेमन ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सैलाब के दौरान पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक हुई। वज़ीर आला पंजाब ने इसे सियासत का नाम दे दिया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम चला रही है। सीनियर सूबाई वजीर शजरीना मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा, पंजाब में फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं BISP कामयाब मॉडल पर तनकीद समझ से बाहर है। सलाम मुतासरीन के लिए आलमी बिरादरी से अपील पर वजीर आजम का शुक्रिया। सिंध ने पंजाब में सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटे के तहत ही रमजान पैकेज तकसीम हुआ। और किसी को शौक है तो अपनी सीट छोड़ के वहाँ दोबारा इंतखाबात करवा ले, उनको पता चल जाएगा कि पब्लिक की क्या इस वक्त पल्स है उनके लिए। सूबाई हुकूमत से हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि BISP भी उनके अंडर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और जो आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम अपील की बात करें वो भी उनकी बात में हम प्राइम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल अपील की, और उन्होंने वादा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीपल्स पार्टी की अपील पे कि हम किसानों के लिए कोई पैकेज देंगे। आज मुझे पता चला कि किसानों के लिए कोई पैकेज दिया जा रहा है, तो हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। शजरीना मेमन ने वाज़ेह किया कि सिंध में सैलाब आया तो सिंध हुकूमत ने 21 लाख घरों की तामीर का ऐलान किया, मगर तनकीद का निशाना सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही बनाया जा रहा है। हमें टारगेट बनाकर विफाकी हुकूमत पर हमला किया जा रहा है। हम तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। बैनुल अक़वामी इमदाद की फौरी जरूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों के जिम्मेदार ममालिक को भी इसमें शामिल किया जाए। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, हम कभी इस तरीके की वो चाह रहे हैं कि आप उनकी पिच पे खेलें। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उनकी पिच पे खेलें। हम उनकी पिच पे नहीं खेलेंगे। कहने को मैं भी कह सकता हूं, मैं नहीं कहूंगा, मर के भी नहीं कहूंगा। 21 लाख घर जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के बाद हुकूमत सिंध ने बनाना शुरू किया, जिसमें अभी तक 7-8 लाख घर बन भी चुके हैं और प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये बाद में होते हैं। अब ये पहले बात करेंगे नहीं, हम किसी को, आप तो बात करो किसी को 10 लाख तो 20 लाख, तो मैं तो 10 लाख दे रहा हूं। भाई 10 लाख आपने बाद में देने हैं ना, अभी तो आपका सर्वे मुकम्मल नहीं है। तो जब तक आपके सर्वे में जितने दिन लगने हैं, चाहे इसमें 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, तब तक लोग क्या भूखे बैठे रहेंगे। सिंध के सीनियर वजीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पीपल्स पार्टी सियासत नहीं खिदमत पर यकीन रखती है। सलाम मुतासिरीन की मदद कौमी फरीजा है, इस पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है। कैमरामैन शाजिब के साथ अक्सर शाहिद, T21। कराची में मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए गए। शहरी महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर हो गए। आलू की सरकारी कीमत 69 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर बाजार में ये 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 220 रुपए किलो है, मगर दुकानों पर 320 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 70 है, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 368 रुपए फी किलो होनी चाहिए, मगर ये 480 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 437 रुपए है, मगर बाजार में 520 रुपए में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से निर्खों की निगरानी ना होने के बराबर है, जिसके बायस दुकानदार बिला खौफ व खतर मुनाफाखोरी में मसरूफ हैं। शहरी हलकों ने ज़िलाई इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने और गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। PNSC का अहम इक़दाम, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लियारी में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में 500 से ज़ायद मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात और मौसर कीमती मशवरे दिए गए। वसीम इफ्तिखार से तफसीलात ले लेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ने अपनी समाजी फलाह बहबूद काविशों के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लियारी में एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। इस इक़दाम का मकसद कम वसाइल रखने वाली हमें आबादी काम करना था। इस मेडिकल कैंप में सुन नहीं पा रहे भाई, ठीक है, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। आपसे दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। PNSC का अहम इक़दाम, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लियारी में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में 500 से ज़ायद मरीज़ों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई हैं।
बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी ने अपनी समाजी फलाह बहबूद की मुसलसल काविशों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लियारी में एक फ्री मेडिकल कैंप का इंतजाम किया। इस इकदाम का मकसद कम वसाइल रखने वाली मुकामी आबादी की बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराम करना था। इस मेडिकल कैंप में OPD की न सिर्फ सहूलियात फराम की गई बल्कि मुफ्त टेस्ट और मुफ्त अद्वियात भी फराम की गई। जो मरीज थे आने वाले उनको मुफ्त तिब्बी मशवरे भी दिए गए। इसके साथ साथ इस एक रोज़ा कैंप में तकरीबन 500 से अफराद को जो है वो मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराम की गई। PNSC की जो आला क़यादत है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जरार हैदर काज़मी समेत जो दीगर हुकाम थे, जिसमें कैप्टन मुस्तफ़ा कज़ल हाशमी और सैयद निशान हैदर तकवी समेत दीगर ने जो है वो इस ना सिर्फ मेडिकल कैंप का दौरा किया बल्कि तमाम तर जो सूरत हाल था उसका जायजा लिया। ये इकदाम PNSC के अज़म को उजागर करता है कि वो अवामी सेहत में बेहतरी और पसमानदा तबकाती फलाह के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रही है। मुकामी आबादी और साहिली इलाकों में मौसर राब्तों के जरिए PNSC समाजी भलाई की फरोख्त और एक सेहतमंद खुशहाल मुआशरा तश्कील देने के लिए कोशा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नौजवानों और मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने, बिजनेस को फ़रोग़ देने के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। शोबे सितारे और ताजिर बिरादरी एक छत तले जमा हुए। तकरीब में जहां नौजवानों के कारोबारी जज्बे को सराहा गया, वहीं फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ फनकारों ने भरपूर आवाज़ उठाई। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। रोशनियों से जगमगाती शाम, शोबिस से वाबस्ता शख्सियात और कारोबारी शख्सियात एक साथ। तकरीब में शोबिस से वाबस्ता मारूफ फनकारों, कारोबारी शख्सियात और नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने भरपूर शिरकत। तकरीब का मकसद नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का अज़म था। वहीं इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फनकारों के जज्बात भी शिद्दत से उभरे। फनकारों का कहना था कि फ़लस्तीन के मजलूम आवाम के लिए आवाज़ उठाना हम सब की इखलाकी जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इनक्रेडिबल बात है। सराफ जो कि कंपनी है जिसको डील मिला है वो मेरे दोस्त बिलाल की है। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम। खुशी की बात है कि भाई यहाँ पर कंपनी को 150 करोड़ रुपया मिला है, और जो कि बहुत बड़ी खुशाइन बात है। ड्रामों की जहाँ आप बात कर रहे हैं वो और डिफरेंट है, बहुत और डिफरेंट है और रियलिटी बेस है। तकरीब के मेज़बान और मारूफ बिजनेसमैन उस्मान बशीर का कहना था कि हरकत में बरकत है। नौजवान अपने बिजनेस आइडियाज़ के साथ आएं, मदद हम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमें ऐसा लगता है कि यूथ बहुत है ऑफ कोर्स, और उनके पास बिजनेसेस को ग्रो करने का और स्टार्टअप्स को आगे लेके जाने का कोई तरीका नहीं है, और कम तरीके हैं आई वुड से, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, उनको फाइनेंसिंग फंडिंग नहीं मिल पाती। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी कम इन। तकरीब में लेजेंड अदाकार जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी, जाहिद खान समेत दीगर फनकारों और ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में खातिर खां कमी। दुनिया की उभरती मईशतों में पाकिस्तान की कारकर्दगी दूसरे नंबर पर रही। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का मुआशी तरक्की पर इजहार इत्मीनान। कहा, ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिर्फ तुर्की पाकिस्तान से आगे है। ये पाकिस्तान की पायदार मुआशी बेहतरी का सबूत है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि ब्लूमबर्ग के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने दिवालिया होने के खदशात में सबसे बड़ी कमी दिखाई है। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिर्फ तुर्किया पाकिस्तान से आगे है। गुज़श्ता 15 महीनों में पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की नुमाया बेहतरी। ये पाकिस्तान की पायदार माशी बेहतरी का सबूत है, क्योंकि मुल्क वो वाहिद मईशत है जिसकी हर सहमाही में मुसलसल बेहतरी देखी गई। इसके बरक्स जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक में बेहतरी बहुत कम रही, जबकि मिस्र, नाइजीरिया और अर्जेंटाइन जैसे ममालिक में खतरात मजीद बढ़ रहे हैं। ये बेहतरी इस बात की अलामत है कि सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। इसके अहम अवामिल हैं मुआशी इस्तेहकाम, साख्ती इस्लाहात और कर्जों की बरवक्त अदायगी सर फहरिस्त है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से भी बेहतरी हो रही है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच, S&P और मूडीज़ की पाकिस्तान मस्बत दर्जाबंदियाँ अहम करार। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खदशात से निकल गया है। पुरएतमाद इस्लाहात पर गामज़न मुल्क के तौर पर अब उभर रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक हफ्ते के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 6,733 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स से नई बुलंद तरीन सतह 1,68,990 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का जोशो खरोश उरूज पर। पूरे हफ्ते शेयर्स की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा। 100 इंडेक्स ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हसस बाजार में हफ्ते भर सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी रही। 100 इंडेक्स में 6,733 पॉइंट्स की शानदार तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स में 4.15% इजाफे के साथ मार्केट 1,68,990 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। कारोबारी हफ्ते के दौरान 360 अरब रुपए मालियत के 7.90 अरब शेयर्स के सौदे हुए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के माशी इकदामात और बेहतर माशी अदाद-ओ-शुमार ने मार्केट के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है। ये हफ्ता पूरा हफ्ता आप देखें मार्केट अपने हर रोज़ अपने लेवल को हाई लेवल बनाती जा रही है। इसकी वजह ये कि आपको फॉरेनर इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल सियासी हालात जो हैं वो अब अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ जाएगी। जी बिल्कुल, इस हफ्ते जो मार्केट के लिए बहुत ही लकी रहा। हम बात करें तो तकरीबन सारी पॉजिटिव खबरें थी। IMF का जो है इजलास शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि रिफाइनरी के हवाले से अच्छी खबरें आईं, सीमेंट की एक्सपोर्ट के हवाले से, सेल के हवाले से अच्छी खबरें आईं, तो इसने मार्केट को मुतासिर किया। और मार्केट में जो सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और ये ट्रेंड चलता रहेगा जब तक जिस तरह फाइनेंशियल रिजल्ट का आगाज़ हुआ है और सिलसिला चल रहा है, तो इसमें भी जैसे ही नतीजे आ रहे हैं तो उस कंपनी में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है। शेयर्स की कीमतों में इजाफे के बायस एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 618 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो बढ़कर 19,660 अरब रुपए तक पहुंच गई। तहम बैरूनी तिजारत के महाज पर दबाव अभी भी बरकरार है। सितंबर 2025 में तिजारती खसारा महाना 16% और सालाना 46% बढ़कर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर पर जा पहुंचा। अशरफ खान, सिटी 21। दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद मुआशरे में उस्ताद के किरदार को उजागर करना और जहालत के अंधेरे को इल्म की रोशनी से मिटाने के अज़्म को दोहराता है। दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुस्तकबिल के मेवारों के निगहबान, जहालत की तपती धूप से बचाने वाला साइबान, इल्म की रोशनी फैलाने वाले उस्तादों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। उस्ताद वो अजीम हस्ती है जिसे रूहानी बाप कहा गया, ऐसा मेमार जो पत्थरों को तराश कर हीरे बनाता है। उस्ताद किसी भी मुआशरे का सतून है जिसके बगैर इंसानियत, तहजीब और तरक्की मुमकिन नहीं। आलमी यौम असातिज़ा हर साल इस अज़म के साथ मनाया जाता है कि तालीम हर बच्चे तक पहुँचाना है और जहालत के अंधेरे मिटाने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के तहत ये दिन 1994 से दुनिया भर में बाकायदगी से मनाया जा रहा है। दुनिया की मुनासबत से मुख्तलिफ जामियात में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तकारीब का एहतमाम किया जाता है। दाऊद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन कहती हैं कि उनके उस्तादों ने हर मोड़ पर रहनुमाई की। आज जो कुछ है उन्हीं की बदौलत है। तो मजहब में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने भी जो जब उनको अल्लाह ने पहली वही दी तो वो इक़रा पढ़ने पे ही दी, और जो हमारे रसूल की दुआ मशहूर है वो रब्बि ज़िदनी इल्मा ही है कि रब मेरे इल्म में इजाफा कर। बाकी नबियों की जो दुआएं हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की हैं, लेकिन हमारा ख़ास तौर पर एज़ उम्मत मोहम्मदिया यही मेरे ख्याल से मंशूर है कि जी हमने इल्म में इजाफा करना है, चाहे वो किसी भी जहत का हो। तो हमारे पास जो असातिज़ा की तकरीम है उसके लिए तो यहाँ तक आ गया कि रूहानी वालिदैन होते हैं हम। पाकिस्तान में आज भी इल्म के चिराग मसाइल की आंधियों में जलते नजर आते हैं। सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी, गैर तदरीसी ड्यूटियाँ और तरबियत के महदूद मौक़े तालीम के फ़रोग़ में बड़ी रुकावटें हैं। असातिज़ा कहते हैं कि वसाइल की कमी के बावजूद वो अपने फ़राइज़ बखूबी अदा करते हैं। टीचर एक अजीम रिश्ता है और टीचर ही जो बच्चों को एक मुस्तकबिल लेकर देता है, क्योंकि वालिदैन के बाद टीचर का काफ़ी रोल होता है। उनको अपने मकसद में आगे लेके आता है, उनको शऊर देता है। बेहैसियत उस्ताद मैं खुद एक उस्ताद हूँ, जो एक मुआशरे में हमें जो आजकल महसूस हो रहा है कि उस्ताद का जो इज़्ज़त वाला जो मकाम है वो आजकल जो होना चाहिए इदारों से वो नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से उस्ताद जो है अपने आप को बहुत जो है वो एहसास महरूमी का शिकार समझता है।
अगर तालीम आम करनी है तो असातिज़ा को उनका जायज़ मुकाम देना होगा, साथ ही उन्हें जदीद निज़ाम तालीम से हम आहंग करना भी वक्त की ज़रूरत है। आलमी यौम तकरीम असातिज़ा वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत और चेयरमैन MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि असातिज़ा मिल्लत के रहबर हैं। इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी वालिद का दर्जा दिया है और उनकी इज़्ज़त व तकरीम ईमान का हिस्सा है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपने बयान में कहना था कि उस्ताद महज मुअल्लिम किताब नहीं बल्कि चराग़ राह है जो जहालत की तारीकी में इल्म की रोशनी फैलाता है। उन्होंने कहा कि कौमों की तरक्की, बका और तहज़ीबों की बुलंदी का इन्हिसार असातिज़ा के एहतराम और इल्म की हुर्मत पर है। ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तलबा इस अज़्म का इजहार करते हैं कि वो अपने असातिज़ा के वक़ार और तक़द्दुस के मुहाफ़िज़ रहेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कौम अपने असातिज़ा की कुर्बानियों को हमेशा शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि उन्हीं के तो फ़ैल कौम का मुस्तक़बिल रोशन और इल्म का चराग़ फ़िरोज़ा है। असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर तक़रीब का इनेकाद, जिसमें असातिज़ा की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तक़रीब में वज़ीर जामियात बोर्ड समेत असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। राहिल बेग की रिपोर्ट। मेरे उस्ताद खुदा तुझ पे हमेशा मेहरबान रहे, तू सदा यूं ही मिसले शजर सायादार रहे। कराची में भी असातिज़ा का आलमी दिन भरपूर जोश व खरोश से मनाया गया। कौम के नौ निहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए असातिज़ा को एजाज़ी शील्ड्स पेश की गयी। सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से तकरीब में असातिज़ा ने मिली नगमे सुनाए और मुख्तलिफ अंदाज में खुशियाँ मनाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर वजीर जामियात बोर्ड ने असातिज़ा से खिताब में कहा कि तलबा को चाहिए कि असातिज़ा का एहतराम करें। असातिज़ा ही हैं जिनसे माशरे में मुस्बत तब्दीली आती है। आज की तकरीब में समझता हूँ तो बहुत शानदार थी, इसमें बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार हुआ और मैं असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें अवार्ड्स मिले और ख़ास तौर पर हमारे तमाम बोर्ड्स के जिनमें पोजीशन होल्डर्स जो बच्चे और बच्चियाँ थी जिन्होंने अपनी मेहनत और काविश के साथ एक लगन के साथ पढ़ाई करके स्टडी करके अपनी पोजीशन हासिल की थी, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने खिताब में कहा, माशरे के संगे बुनियाद असातिज़ा का दिन मनाने का मकसद टीचर की अहमियत और उनके नाकाबिले फरामोश किरदार को उजागर करना। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने और उनकी हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स पेश की गयी। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। मुल्क में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर का आगाज। जेली होल्डिंग ग्रुप कैम्बर स्टार मोटर्स ने कराची में पाकिस्तान का पहला न्यू एनर्जी व्हीकल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। फारिजोन, ज़ेकर और जेली रेडिडारा जैसे ब्रांड्स ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। ग्रुप आलमी सतह पर बरकी गाड़ियों की तैयारी के लिए मशहूर है। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त। जेली होल्डिंग ग्रुप कैम्बल स्टार मोटर्स पाकिस्तान में जदीद, माहौल दोस्त और पायदार ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म फॉरथिंग JMEV जैसे आलमी ब्रांड्स मुतारिफ। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मारूफ शख्सियात और सनती माहिरीन की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि हम दुनिया से बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तानी बिजनेसमैन बेहद सलाहियतों के मालिक है। मैं हमेशा इनके साथ हूँ। हम अपने मुल्क में अच्छे प्लांट लगा के, अच्छी फैक्ट्रीज लगा के, अच्छे शोरूम्स खोलकर अपने शहर को खूबसूरत बनाकर और लोगों को रोज़गार के मौके क्यों नहीं दे सकते। और ये सारी चीज़ों के टैलेंट मौजूद हैं। जब हमारे यहाँ लोगों में अपनी मदद आपके तहत काम करने का हौसला है और जज्बा है कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ रुकावट होगी। मार्केटिंग डायरेक्टर फराह रजा का कहना था कि कम कीमत में बेहतरीन गाड़ियां मुतारिफ कराई गई हैं। लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। सेडान में हमारे पास में एक बहुत ही खूबसूरत JMEV E-Lite मौजूद है, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस रेंज के अंदर हम लेकर आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान के ऑटो इंडस्ट्री के लिए संग मील साबित होगा, बल्कि आलमी मेयार की ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए रोजगार, सरमायाकारी और पायदार तरक्की के नए मौके भी पैदा करेगा। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21।